students, welcome back to maths class once again. We were doing class 7 chapter number 4 decimals and we have completed till exercise 4.3. So now let's move further and discuss exercise 4.4 word problems. So now first question of our exercise, it is given Rakesh purchased 3 books at rupees 35.60 each. उसने राकेश ने 3 बुक्स ली हैं लेकिन ईच बुक का हर एक बुक का कॉस्ट है रुपीज 35.60 एंड 2 पेंसिल्स एट रुपीज 4.50 ईच. उसने 2 पेंसिल्स भी ली हैं और ईच पेंसिल का कॉस्ट कितना है 4.50. हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड. उसने टोटल कितनी मनी स्पेंड की है. तो पहले हम एक बुक की कॉस्ट से 3 बुक्स का कॉस्ट निकाल लेंगे. ऐसे ही एक पेंसिल की कॉस्ट से 2 पेंसिल्स का कॉस्ट निकाल लेंगे. तो उनको जब हम टोटल कर देंगे 3 बुक्स की कॉस्ट को 2 पेंसिल्स के कॉस्ट के साथ, व्हाट आई विल गेट टोटल मनी स्पेंड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज इक्वल टू रुपीज 35.60. नाउ कॉस्ट ऑफ 3 बुक्स विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 35.60 मल्टीप्लाइड बाय 3. जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 3 6 18, 1 कैरी 3 5 15, 16 अगेन 1 कैरी 3 3 9 10. 106.80 is my cost of 3 books. Now cost of 1 pencil. अब एक पेंसिल का कॉस्ट कितना दिया हुआ है रुपीज 4.50. So cost of 2 pencils will be equal to 4.50 multiplied by 2. What I will get again? 2 zeros are 0, 2 5s are 10, 2 4s are 8, 9. Decimal का decimal आ जाएगा. So now total money he spent, total money Rakesh spent will be equal to total money Rakesh spent will be equal to, हम टोटल कर देंगे इन मनी को, क्या आ जाएगा 106.80 प्लस 9. व्हाट आई विल गेट 0.80. 9 plus 6 will be 15. 115.80 is my answer. So this is the total money Rakesh has spent. So now let's move forward to question number 2. Now let's see question number 2 of our exercise. It is given the length and breadth of a rectangular metal sheet is 4.6 meter and 2.4 meter. एक rectangular metal sheet है जिसमें मुझे लेंथ दी हुई है 4.6 मीटर एंड ब्रेड्थ मुझे कितनी दी हुई है, ब्रेड्थ इज गिवन 2.4 मीटर. If the cost of metal is rupees 2.50 per square meter. पर स्क्वायर मीटर का मतलब क्या है, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया हुआ है मुझे. Cost of 1 meter square is given. Find the cost of rectangular sheet. मुझे अगर 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया तो इसका मतलब क्या है, मुझे क्या फाइंड करना होगा रेक्टेंगल का. आई हैव टू फाइंड एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर शीट. तो पहले मैं क्या करूंगी, व्हाट आई विल राइट, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मेटल sheet is equal to how much 4.6 meter. Now breadth of rectangular metal sheet is equal to how much 2.4 meter. Now what is the area of rectangle? Area of rectangle is equal to length multiply breadth. Area is always equal to length multiply breadth. What I will do, 4.6 will be multiplied by 2.4. What I will get now when I will multiply 46 by 24, 4 6 are 24, 1104 will be my multiplication. Now after decimal 1 digit is there, after decimal 1 digit is there, so we will count from back 1 2 and I will get 11.04. So 11.04 is my area of the rectangular sheet. Now
cost is given, cost of 1 meter square is given, cost of 1 meter square is given rupees 2.50 and I have to find cost of 11.04 meter square rectangular sheet, cost of 11.04 meter square. जब मुझे कम से ज्यादा का निकालना हो, what we do, we multiply. So 11.04 will be multiplied by 2.50. I will get 1104 divided by 100 multiplied by 250 divided by 100. जब हम कट करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, 5 5 is 25, 5 2 is 10. अगेन 2 पे जा रहे हैं, 2 5 is 10, 2 5 is 10, 2 2 is 4. अब हम क्या कर देंगे, 552 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, क्या आ जाएगा, और डिवाइड में क्या बचा है मेरे पास 100. व्हेन आई विल मल्टीप्लाई आई विल गेट 5 2 is 10, 5 5 is 25, 2 कैरी, 5 5 is 25, 27 डिवाइडेड बाय 100. सो 0 से 0 कट, एक 0 रह गया तो मेरे पास क्या आ जाएगा 276. पीछे से काउंट करेंगे तो पॉइंट पीछे से 6 के पीछे लग जाएगा. सो कॉस्ट विल बी इक्वल टू रुपीज 27.60. So this is my cost. So now let's move forward to question number 3rd. Now let's see question number 3rd of our exercise. It is given a car takes 3.5 hours to cover 210 kilometer. एक कार 3.5 hours ले रही है कितना डिस्टेंस कवर करने के लिए, 210 किलोमीटर. How much time will it take to cover 918 किलोमीटर. अब अगर उसे 918 किलोमीटर कवर करना है डिस्टेंस तो कितना टाइम लेगी वो कार. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास डिस्टेंस है, हमारे पास टाइम है, वी विल फाइंड स्पीड. हम स्पीड फाइंड करते हैं कार की. सो नाउ आई नो दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम. डिस्टेंस स्पीड टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम. यहां से अगर मुझे स्पीड फाइंड करनी हो, टाइम मल्टीप्लाई में है डिस्टेंस के साथ, तो टाइम यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा डिस्टेंस से. सो स्पीड विल बी इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम. सो नाउ डिस्टेंस इज गिवन. देयर आर 2 केसेस गिवन. नाउ केस नंबर फर्स्ट, डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है 210 किलोमीटर एंड टाइम इज गिवन 3.5 hours. I have to find here speed. Now speed is equal to distance divided by time. So distance divided by time. Distance कितना दिया हुआ है 210 divided by 3.5. 3.5 को मैं और कैसे लिख सकती हूँ, 35 by 10 भी लिख सकते हैं. जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, multiplied by 10 by 35. 5 7 are 35 or you can do 7 5 are 35, 7 3 are 21, 0, 5 6 are 30. तो मेरे पास क्या आ जाएगा 60. 6 multiply 10 will be equal to 60 किलोमीटर पर आवर is my speed of the car. अब मुझे स्पीड पता चल गई है, स्पीड है कार की 60 किलोमीटर पर आवर एंड इट इज ऑल्सो गिवन कि अब डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है 918 किलोमीटर. तो अब ये कह रहा है that how much time will it take. अब कितना टाइम लगेगा इसको कवर करने के लिए, मुझे अब टाइम फाइंड करना है. तो अगर मुझे टाइम फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड. जब टाइम उधर चला जाएगा स्पीड इस साइड आ जाएगी. सो वी कैन राइट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड. डिस्टेंस डिवाइड में स्पीड के. So now distance is equal to 918 डिवाइडेड में 60 के. किस पे जा रहा है, ये 3 पे जा रहे हैं दोनों. 3 2 is 6 0, 3 3 is 9, 3 6 is 18. Now it is going on 2 2 10s are 20, 2 1s are 2, 2 5s are 10 and 2 3s are 6. So what I will get, 153 by 10 or I can say 15.3 hours is the time it will take to cover the distance 918 kilometer. So now let's move forward to next question. Now let's see question number 4th of the exercise. It is given a bag of rice weighs 3.5 kg
एक बैग है राइस का जिसका एक बैग का वेट है 3.5 kg एंड अ टिन ऑफ मिल्क पाउडर वेज 850 ग्राम। अब ये किलोग्राम में दिया हुआ है एंड दिस इज गिवन इन ग्राम। टिन ऑफ मिल्क पाउडर, जो टिन है मिल्क पाउडर का, वो उसका कितना वेट है 850 ग्राम। फाइंड द टोटल वेट ऑफ 3 बैग्स ऑफ राइस। मुझे एक बैग का वेट दिया हुआ है, आई हैव टू फाइंड 3 बैग्स का वेट एंड 6 टिन्स ऑफ मिल्क पाउडर। मुझे एक टिन का दिया हुआ वेट, आई हैव टू फाइंड वेट ऑफ 6 टिन्स ऑफ मिल्क पाउडर। एक्सप्रेस इन किलोग्राम, मुझे आंसर को एक्सप्रेस करना है किलोग्राम में, इन्होंने ये मुझे क्वेश्चन में ही बोल दिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल weight of one bag is equal to weight of one bag is equal to 3.5 kg. Now weight of 3 bags will be equal to 3.5 multiplied by 3. मुझे एक से ज्यादा का निकालना है तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 5 are 15, 3 3 are 9, 1 carries there, so 10.5 kg. Now similarly weight of 1 टिन इज इक्वल टू, एक टिन का कितना वेट दिया हुआ है 850 ग्राम दिया हुआ है। नाउ आई नो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 ऑफ किलोग्राम। सो 850 ग्राम में कितने हो जाएंगे 850 डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम। अब मुझे एक टिन से कितने टिन्स का निकालना है वेट 6 टिन्स का। सो वेट ऑफ 6 टिन्स विल बी इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 850 बाय 1000। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 से 0 कट। नाउ 2 3 are 6, 2 5 are 10, 0, 5 10s are 50, 5 1s are 5 and 5 7s are 35। तो मेरे पास क्या बचेगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 17 बाय 10, 17 3s are 51, 51 by 10 I will get 5.1 kg. So now at last I have to find total weight। मुझे total weight निकालना था 3 bags का और 6 tins का। So what I will write, total weight is equal to 3 bags का मेरे पास कितना आ चुका है 10.5 kg and 6 tins का कितना आ चुका है 5.1 kg। So plus 5.1, what I will get 15.6 kg is the total weight of 3 bags of rice and 6 tins of milk powder in kilogram. So now let's move forward to question number 5th of our exercise. Now let's see question number 5th of our exercise. It is given Sheila measures a whiteboard with her hand span. Hand span क्या होता है, जब हम किसी चीज को इस तरह से मेजर करते हैं तो शीला एक व्हाइट बोर्ड को मेजर करती है अपने हैंड के मेजरमेंट से, हैंड स्पैन से, एंड फाइंड्स दैट इट इज 28 हैंड स्पैन्स लॉन्ग। जब वो 28 टाइम्स इस तरीके से करती है तो उसकी बोर्ड की मेजरमेंट जो है वो खत्म होती है। हर हैंड स्पैन इज 18.4 सेंटीमीटर लॉन्ग। कहने का क्या मतलब है, उसके एक हैंड स्पैन का कितना मेजरमेंट है, एक हैंड स्पैन का मेजरमेंट है 18.4 सेंटीमीटर। नाउ इट इज गिवन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द व्हाइट बोर्ड। अगर एक का मेजरमेंट इतना है तो टोटल उसको कितने लगे थे हैंड स्पैन, टोटल उसको लगे थे 28 हैंड स्पैन। 28 times she has done like this. Then the measurement of the whiteboard has been completed. तो मुझे इस व्हाइट बोर्ड की मेजरमेंट बतानी है। वेरी सिंपल, अगर एक हैंड स्पैन का जितना लेंथ है और हम उसको 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, लेंथ ऑफ व्हाइट बोर्ड विल बी कम। सो लेंथ ऑफ वन hand span is equal to 18.4 centimeter. Now length of, it is given in the question, how many hand span 28. So it will be equal to 28 multiplied by 18.4. हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, 28 multiplied by 184 divided by 10। अगर डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। जब हम 28 को 184 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5152 डिवाइडेड बाय 10, और इसको कैसे लिख सकते हैं 515.2 सेंटीमीटर। सो द लेंथ ऑफ द व्हाइट बोर्ड इज इक्वल टू लेंथ, एट लास्ट यू विल राइट लेंथ
of the whiteboard is equal to 515.2 centimeter. So here question number 1 to 5 are completed. That's all for today. Thank you and have a nice day.